Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. So we are back with another interview experience, and in this video we'll be discussing about the internship role. So for that I have invited Vishaka on my YouTube channel. So recently she has been offered internship from Microsoft and she'll be joining Microsoft as an intern in the upcoming summer. So in this video we'll be understanding how she got this opportunity, all about her journey. So make sure to be with us till the end of this video. I believe that this video is going to be really helpful for you. And also don't forget to share and subscribe my channel. So yeah, Vishaka, that's all from my side. You can start with your introduction. Hello everyone, I'm Vishaka Malani. I'm a second year student. I'm just pursuing my BTech in Information Technology. And thanks for Sonia for inviting me. And I'm going to talk about how to get a SWE, that is a software engineering internship in Microsoft. I'll be sharing my LinkedIn ID at the end. So let's get started. Yeah, great introduction. So yeah, as Vishaka mentioned, I'll be mentioning her LinkedIn profile in the description. So in case you are having any doubt or any query, you can directly reach out to her on her LinkedIn profile. So as Vishaka, you have mentioned that you got this internship opportunity through Microsoft Engage program. So can you let us know more about this program in terms of eligibility and what are the rounds that you went through for the selection process? Okay, so basically Microsoft Engage programs is for the second year as well as for fourth year. For fourth year, it's going to be launching, I guess, this September. So for second year, the time for registering is during April, the last month of April, and make sure to be active on the site because the time duration is not fixed. It could be the form could be closed anytime. So make sure you don't miss this opportunity. So if we talk about the rounds, it contains 3 rounds actually. So I'll be describing, like Soumya will be asking me one by one. I'll be describing each round in the descriptions. And if you talk about registration form, in this registration, we are asked about the resume. Our LinkedIn profile is optional, but I will recommend all of you to work on your LinkedIn and mention your LinkedIn profile there. But in case your LinkedIn profile is not good, so it's a recommendation, don't mention it there. It could be a drop off or a back point for you. So don't mention it. And make sure in resume you add some projects related to, if you can add, not necessary, but if you can add project related to Azure, and you can just learn project. It's like you can take 10 to 15 days before, you can take the preparation time before April, like you'll be applying for it next year. So make sure that you create good projects because projects gives a very good impression, because all for the first round shortlisting is done on the behalf of resumes. तो resume एकदम बढ़िया होना चाहिए आपका. but ठीक है, ये भी समझ आता है कि resumes आप वर्क, क्योंकि आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट है तो आपके पास बहुत सारे इंटर्नशिप्स नहीं होगी एज एक्सपीरियंस, बट आप प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं. तो वेब डेवलपमेंट पे फुल स्टैक जो भी आपको आता है, मेक श्योर आप उसको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं. और फिर मेनली नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है, आपका नेम, कॉलेज, आपकी ग्रेड्स कितनी आ रही है कुछ. बट और क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हैं, 7+ CGPA होनी चाहिए. अगर 7 से नीचे है तो वो अलाउ नहीं करता है माइक्रोसॉफ्ट अप्लाई करने के लिए. So this is for application, all about application. Got it. एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन था that was about राउंड्स. सो जैसे कि राउंड्स में आप एलैबोरेट कर सकते हो कि कितने राउंड्स थे एंड किस तरीके के क्वेश्चन थे. यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट क्वेश्चन बट इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल और द टॉपिक दैट यू कैन मेंशन. सो या दैट वुड बी अपग्रेड. In terms of बहुत ही ज्यादा वास्ट था, एक्चुअली वास्ट था. सबके सेम क्वेश्चंस नहीं थे. किसी को इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे दिए गए वो एक्सपेक्टेड नहीं था, और किसी को देखिए इतने फुल क्वेश्चंस दे दिए. So what we need to prepare is, at least as a second year student, you must know all the basics of DSA. For the round first, I'm talking about basics of DSA, like whether it's time complexity, TP, the questions of TP. In my round there was, but if I asked my friends, they didn't get any questions of TP, not even of hash. So make sure सारी टॉपिक्स का ब्रीफिंग आपको पता हो, थोड़ा लॉजिक समझ आ रहा हो. तो जो फर्स्ट राउंड होता है वो आपको हाफ एन आवर मिलेगा एंड 10 क्वेश्चंस. यही अभी हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक वो अपनी अप्रोच चेंज कर ले, बट अभी 2 साल से यही चल रहा है, हाफ एन आवर एंड 10 क्वेश्चंस. उन 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे. कुछ टाइम फिक्स नहीं है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, आपके घर से उस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगता है. तो
मेक श्योर आप पूरा उस पर कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन आए और आंसर देना है। उसकी प्रिपरेशन का पूछे तो डीएसए अगर आप आती है अच्छे से, आई प्रेफर कि आप सेकेंड ईयर हैं तो आपको डीएसए आती ही होगी, और नहीं आती तो प्लीज अभी टाइम है, प्रिपेयर फॉर इट, एंड फर्स्ट राउंड प्रॉपर्ली डीएसए से हो जाएगा। सो अब सेकेंड राउंड, अब इसमें फर्स्ट राउंड के बाद शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई थी, जितना मुझे आइडिया है नहीं हुई थी। और सेकेंड राउंड का ये था कि सेकेंड राउंड भी डीएसए बेस्ड था, बट इसमें सिर्फ 8 क्वेश्चन थे। कईयों के काफी 2 क्वेश्चंस भी मेंशन थे वहाँ पे, बट मेनली 8 क्वेश्चंस ही आया था। सो तो क्वेश्चन मेनली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड था, पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन, पजल बेस्ड क्वेश्चंस थे। सो मेनली डीएसए में पजल्स आपने बनाने सीखे हो तो वो आप यूज कर सकते हैं, बट अगर पजल बनाना नहीं आता है तो आप पीएनसी लॉजिक वहाँ लगा सकते हैं। तो पीएनसी लॉजिक एक्सेप्टेड था, मुझे क्योंकि आता था तो मैंने पीएनसी लॉजिक समझाया प्लस पजल भी बनाया। और क्वेश्चन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के भी बहुतों के आए थे कि, और वो टू द पॉइंट क्वेश्चन थे, एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, तो वो आपके लगते हैं प्रॉपर लगता है, क्योंकि मुझे माइक्रोसॉफ्ट ये आपकी रैंडम कंप्यूटर प्रोसीजर होता है कि कौन सा क्वेश्चन किसके पास जा रहा है, कुछ फिक्स नहीं था। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस आए थे काफी बच्चों के, और लाइक ऐसे था कि 2 मिनट में हो गए, क्योंकि मेरा एपीएनसी का क्वेश्चन था। अगर आप मेरा खुद का क्वेश्चन सुनना चाहते तो वो रिलेटेड था बॉल से रिलेटेड, कि आपके पास एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारे कलर्स की बॉल्स हैं, और बॉल्स में भी डबल साइडेड बॉल, मतलब डबल कलर्ड, लाइक इस साइड पिंक है तो वहाँ ब्लैक हो सकता है, तो उठाने पे कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा, वो बहुत डिस्क्राइब क्वेश्चन था। तो उसको समझने में टाइम लगा, बट सोल्यूशन वाज इजी। और फिर पजल ऑप्शन था, पजल वहाँ भी लिखा था कि आपको पजल बनाना है, वो ऑप्शन में आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और अगर जेई दिया है तो पीएनसी के क्वेश्चन हमने हैंडशेक के क्वेश्चंस करे हैं, और पार्टीज इनवाइट, राउंड टेबल के क्वेश्चंस करे हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस डीएसए के थ्रू भी सॉल्व होते हैं। अगर आपको वो आता है आप वो लॉजिक लगाओ, या फिर आप पीएनसी वहाँ पे एक्सप्लेन करो। तो ये पूरा था सेकेंड राउंड से रिलेटेड। आधा घंटा था, क्योंकि मेरा कहा कि मेरे शायद लगा अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरा क्वेश्चन काफी डिस्क्राइब आया था, मैं जिससे पूछा किसी का इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आया था, तो मुझे उसमें 12 से 13 मिनट लग गए, और काफी बच्चों ने सिर्फ 2 या 3 मिनट में भी कर दिया। सो उसके बाद ही हमारी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट 2 राउंड्स। ओके, तो इसके आई मीन दीज 2 राउंड्स वर देयर, एंड आफ्टर दिस आपको डायरेक्टली एंगेज प्रोग्राम में एंट्री मिलने वाली थी, एम आई राइट? और वाज देयर एनी अदर राउंड? यस यस एक्चुअली, और सबसे बड़ी जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई ना, वो इस 2 राउंड्स के बाद ही हुई, कि आए तो एप्लीकेशंस थाउजेंड्स में थे, पूरी इंडिया के लिए होता है ये। आई नीड टू मेंशन कि लास्ट ईयर तक ये सिर्फ टियर 1 कॉलेजेस के लिए था, बट इसी ईयर से ये सारे कॉलेजेस के लिए ओपन हुआ था। तो इसमें ये था कि शॉर्ट लिस्टिंग के बाद सब 2 राउंड्स में हम सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको एक मेंटी बनाया जाता है, आपके पास एक मेल आता है दैट यू आर सिलेक्टेड एज माइक्रोसॉफ्ट मेंटी। उस मेंटी में आपको मेंटर्स दिए जाते हैं, फुल टाइम वर्कर्स जो माइक्रोसॉफ्ट में होते हैं, और आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, जिसमें एक लाइव प्रोजेक्ट, यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट्स मेनली ऑफलाइन वालों को दिए गए थे जितना मुझे नॉलेज है, बट हर जगह अलग वो कंडीशंस हो सकती है। हमें ऑनलाइन प्रोजेक्ट था, 3 प्रोजेक्ट्स के ऑप्शंस थे और 1 महीने का टाइम था। 3 प्रोजेक्ट्स को भी मैं और डिस्क्राइब कर दूंगी कि उन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या करना था। तो मेनली रैंडमली आपको किसी भी, जितने भी एप्लीकेंट सेलेक्ट हुए हैं फॉर थर्ड राउंड, उन्हें 30 या 35 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और हर एक ग्रुप को एक मेंटर दिया। उन मेंटर्स को हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऐप पे कनेक्ट किया, और वहाँ हमारी मीटिंग्स होती थी, वीकली होती थी, या फिर जब भी हमें कुछ अर्जेंसी की जरूरत हो वो हमारे अकॉर्डिंग मीट शेड्यूल कर देते थे। तो उन मीटिंग्स में फिर हमने अपने मेंटर से बात करी, उन्होंने हमें कुछ रिसोर्सेज बताया जिससे हम अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते, और वो रैंडमली गाइडेंस देती थी। और सिर्फ ऐसा नहीं था, उस टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे ए साइकर की जो वेबसाइट है, वहाँ पे टाइम टू टाइम हर 2-3 दिन में असाइनमेंट आता रहता था। वो असाइनमेंट आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा कि आपका प्रोजेक्ट लेवल किस लेवल पे पहुंचा है, आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, और प्रोजेक्ट को थोड़ा कुछ लाइंस में डिस्क्राइब करना पड़ता था, ताकि हर एक हफ्ते हम जो उनका रहता था कि हर एक हफ्ते की एंडिंग में एक डिस्क्रिप्शन आता था, असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना था कि इस हफ्ते में हमने क्या क्या किया अपने प्रोजेक्ट पे। तो ये प्रॉपर था, और बहुत सारी अलग एक्टिविटीज, वर्कशॉप्स भी होती रहती, डाउट सेशंस होते रहते थे, मतलब अलग अलग मेंटर्स जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के अपॉइंटेड मेंटर्स, कुछ भी हो सकते हैं वो आपकी वर्कशॉप्स देते रहेंगे, वेबिनार्स होते रहेंगे, जिसमें वो आपको डाउट सॉल्विंग करेंगे मेनली।
तो सिर्फ वो मेंटर्स नहीं देते, आपको डाउट सॉल्वर्स और अच्छे अच्छे स्पीकर्स से भी कनेक्ट करवाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और साथ में फुल टाइम वर्कर्स से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो मेनली ये था क्राइटेरिया प्रोजेक्ट बनाने के पहले। अब प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन मैं दूं सौम्या, तो प्रोजेक्ट में हमें 3 ऑप्शंस दिए थे। वन वाज फेस रिकग्निशन। फेस रिकग्निशन आप यूज कर रहे हो प्रॉपर उसमें। फेस रिकग्निशन ये मेरा प्रोजेक्ट था। फेस रिकग्निशन में हमें फिर ऑप्शंस दिए कि हम फेस रिकग्निशन करें और फिर उसे किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इन रियल वर्ल्ड। तो वो क्रिमिनल के लिए हो सकता है या फिर कोई डिजीज डिटेक्शन हो रहा है, कुछ भी हमें पार्किंग के लिए कुछ बनाना है कि कितनी वहाँ पे गाड़ियां पार्क हुई हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ रिकॉग्नाइज ही डिटेक्ट होना चाहिए, ये मेन था। एआई बेस्ड मेरा मॉडल एआई बेस्ड था। वहाँ पे टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं होता, इट्स ऑल जो टेक स्टैक आपको सूट करे यू कैन यूज इट। सो सेकंड वाज डेटा एनालिसिस। वैसे तीनों प्रोजेक्ट्स में कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, ओपन था कि आपको बनाना है या तो आपका एक वेब ऐप होना चाहिए या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन होनी चाहिए, दोनों आपके ऊपर था, पूरा फ्री था कि आपको अपने तरह से बनाना है। बट डेटा एनालिसिस में बस एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था कि आपका जो वर्क होना चाहिए वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, कि ऑटोमोबाइल में हम डेटा एनालिसिस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक सेकंड ऑप्शन था कि आप डेटा एनालिसिस का एक प्रोजेक्ट बनाएं और मेनली आपका फोकस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे होना चाहिए। और थर्ड प्रोजेक्ट हमारा था रिकग्निशन, सॉरी इट वाज ऑल अबाउट अ वेबसाइट, नेटफ्लिक्स वेबसाइट या फिर अपन कहते हैं ना कि जिसमें सर्च करने पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ऐसे कुछ अपन को वेबसाइट बनानी थी। और मैंने एक बना रखा है, बट मुझे था कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है, तो मैं डेटा एनालिसिस पे जाना चाह रही थी। बट मुझे लगा कि टाइम भी कम है, अब डेटा एनालिसिस मुझे आता नहीं है। अब मैंने अब सीखना स्टार्ट किया इसका वो देख के, उस टाइम पे मुझे नहीं आता था। तो मैंने क्योंकि अपने मेंटर से बात करी कि मैंने डेटा एनालिसिस कभी नहीं किया है बट मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ, तो उसमें मेरे मेंटर ने कहा कि रिस्क मत लो, क्योंकि नई चीज सीखने में अगर टाइम लग गया तो टाइम वेस्ट माना जाएगा पूरा, और आपके पास 1 महीना ही है, और उस 1 महीने में कुछ भी हो सकता है, आपके एग्जाम्स भी हो सकते हैं, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, तो आप प्रॉपर डिस्ट्रप्शन होता ही है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, फेस रिकग्निशन मैंने पहले काम कर रखा है। नाउ इट्स लाइक कि आप जब प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर प्रोजेक्ट्स आप अपनी टेक्नोलॉजी स्टैक को देखते हुए, अपनी प्रायोरिटीज मेंटेन करते हुए आप वो प्रोजेक्ट दें। आप कुछ भी रैंडमली एक्सप्लोर करने के लिए प्रोजेक्ट्स ना जाएं until you're confident. So let's talk about my project, that is face recognition. So face recognition, so I'm really sure that I can use it for many purposes, whether it's for attendance or disease diagnosis or something. But then I attended one meeting on that, like on the webinar that they conducted, and the professor, he was a professor in some college, I guess. So he gave us this example. That example really fascinated me to try something new. I'll give you that example. That was like you can include object recognition in it. You can do that. There's a parking slot and there's a CCTV camera. So at that time you can that's allowed that there was only 4 parking space allowed and only 4 cars can be parked. So if for example a 5th car is parking there, the same time the CCTV, the live surveillance camera is open, and it's going to detect that it's the 5th car, and it's going to zoom in to the nameplate and recognize if what's the number of the that car and send it to RTO office or to directly to a police station that this is the case, and you can apply a fine, and directly on your address you'll get a fine. So this was an idea I got, and I gave this to 2 or 3 of my friends and asked them to work over it. But because I was a little bit more confident on working on criminal one, so I opted for a criminal face recognition. I gave this idea, so in case Microsoft is repeating this project, so you can try on this project. It's actually a bit easy if you understand how things work. You can actually work on this. So let's move on to my project, which is of criminal. I added 4 features in it. So there were many criteria for selecting any project, but the main criteria was the number of feature you have added in. So I came to know that there are many students working on criminal project on criminal face detection. So I actually added a good readme file
through how preview file on my GitHub profile, that how we can use this project and what are the advantages, and try to add one or two more features than other students could be adding. So that was my approach, to add more features and make sure that UI of my project looks fabulous. That was my motto while making the project. So I'm going to mention 4 of the features that I worked on. So 4 features की बात करें तो मेरा नॉर्मल तो आपको था कि कोई भी क्रिमिनल फोटोज फर्स्ट फीचर का रजिस्टर करना, कि आपने किसी पुलिस स्टेशन को अपना ऐप दे दिया या फिर वेब एप्लीकेशन दे दी, अब वो वहाँ आके कोई खो गया हो, कोई लॉस्ट हो या फिर कोई क्रिमिनल हो, उनकी फेसेस वहाँ पे वो रजिस्टर कर रहे हैं। एक बार फेस रजिस्टर हुआ है तो कैमरा के सामने जब भी वो फेस डिटेक्ट होगा या कैमरा के सामने आएगा, वो हर एक सेकंड में फेस कैप्चरिंग करेगा और बताएगा कि ये वो फेस है या नहीं है। दैट वाज माय वर्क। तो इसमें मैंने जिसमें वर्क किया वो पाइथन था। पाइथन की वजह से मैंने मॉडल पे वर्क करा, और मेरा मशीन लर्निंग का मॉडल था जिसपे फेस रिकग्निशन जो काफ़ी इजीली आप सीख सकते हैं अगर आप थोड़ा भी डेडिकेशन दे रहे हैं। बट मेन था कि आप इस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे अपना यूआई बना रहे हैं। तो ये मेरा सेकेंड फीचर था कि इसको डिटेक्ट करना। थर्ड था कि कोई रिकॉर्डेड वीडियो आप डाल रहे हैं, जिसमें कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो, कोई सीसीटीवी की पुरानी रिकॉर्डिंग हो सकती है, कुछ भी जहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जहाँ क्रिमिनल देखा गया हो, तो उस लाइव वीडियो में चाहे कितना भी दूर हो, मैंने डिस्टेंस भी लिखा था वहाँ पे, उसके थ्रू आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वही फेस है जब रजिस्टर किया है या फिर नहीं। तो दिस वाज माय थर्ड फीचर के साथ ही मेरा एक और फीचर नेक्स्ट था, दैट वाज लाइव सर्वेलेंस। लाइव सर्वेलेंस में था कि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो का था, लाइव सर्वेलेंस एक भी लाइव सीसीटीवी ने किसी फेस को डिटेक्ट करा है तो वो आपको नोटिफाई करेगा कि वहाँ पे एक फेस डिटेक्ट हुआ है जो किसी भी क्रिमिनल या जो रजिस्टर्ड क्रिमिनल है उसका है। और फिर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करते हुए जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई थी वो इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी कि ये इन्फॉर्मेशन वाला क्रिमिनल हमें मिला है। फोर्थ फीचर जिस पे मैं काम करना चाह रही थी, कुछ ऐसा फीचर हो कि हमें नोटिफिकेशन मिल रहा हो, हमारी वेबसाइट पे ही मिल जाए या तो नोटिफिकेशन कि हमने डिटेक्ट हुआ है, या फिर उसी वक्त हमारे नंबर पे वो आ जाए कि ये यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है और इस टाइम पे डिटेक्ट हुआ है ये क्रिमिनल। तो उसके लिए मैंने SMS फीचर डाला जिसमें मुझे एक नंबर से SMS आएगा। मैंने अपना नंबर डाल दिया उसमें कि जैसे ही डिटेक्ट हो तो मुझे इस नंबर पे SMS आ जाए, मुझे लोकेशन आ जाए और मुझे टाइम आ जाए जिस टाइम पे मुझे वो मिल रहा है प्रोजेक्ट, सॉरी मिल रहा है क्रिमिनल। तो क्रिमिनल मिल रहा है तो उस टाइम पे फिर उसमें ये था कि हर एक सेकंड में अगर वो डिटेक्ट कर रहा है तो हर कुछ टाइम बाद मुझे मैसेज आ रहे थे। तो मैंने वर्किंग शो करी उसकी। ऑल्सो लास्ट का सबमिशन हमें क्या करना होता है, एक गिटहब प्रोफाइल का लिंक प्लस आपने एक 4 मिनट का वीडियो सबमिट करना होता है। उस 4 मिनट की वीडियो में आप एक्सप्लेन करेंगे, अपना स्क्रीन शेयर करेंगे और उसमें बताएंगे कि आपने कैसे अपने प्रोजेक्ट को किया, उससे सारे फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे। तो आपकी जो अब सिलेक्शन होगा वो गिटहब प्रोफाइल और 4 मिनट की वीडियो पे भेज सकता। तो यही मेन वर्क था प्रॉपर्ली, बस यही मेन था, उस पे काम और कर सकते हैं आप इजीली। एंड आई मस्ट से कि आपने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, एंड इवन द फीचर्स द वे यू हैव एक्सप्लेन, दैट्स ऑसम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर इन माय माइंड वाज रिगार्डिंग लाइक, सो एज इफ यू मेंशन दैट project can be duplicate, like you said you were working on that project, some students were also working, then what do you believe, what was the criteria that they were evaluating the students? And also the next question, let's include in that part only. So was it like after you are done with the project they have evaluated the students, so was it like they are directly going to offer you an internship, or was there any interview or something like that also? And that question of how they're evaluating the project that question was always in my mind. So I asked this question from my mentor, and what answer I received is very important. Information is very important for you while you're working on your projects. So they gave us 3 projects. So they divided students. For example, let's take number. If there are 100 students, 20 like 30, 33 can take, are working on 3 different projects. So the evaluation, they'll be divided in 3 parts. And they'll be divided, like for data analysis, they'll be selecting 30, for face recognition 30, and for some Netflix type website, they'll be selecting 30. So इस तरह से डिवाइड हुआ था कि आपको अपने प्रोजेक्ट के बेसिस पे जज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि फेस रिकग्निशन किसी ने बनाया
उससे नेटफ्लिक्स की वेबसाइट से आपको कर रहे हैं कि आपका कंपैरिजन हो रहा है, तो वो जस्टिफाइड नहीं था ना वो हो रहा था। तो आपको डिवाइड कर दिया आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे। अब प्रोजेक्ट में भी पार्ट्स, जैसे फेस रिकग्निशन में पार्ट्स आ गए काफी ज्यादा। तो प्रोजेक्ट क्रिमिनल वालों पे बनाया है, किसी अटेंडेंस के लिए बनाया है, डिजीज के लिए बनाया है, पार्किंग के लिए बनाया है, या कुछ भी हो सकता है। तो अगर उनमें भी फिर उन्होंने बाइफिकेशन करा, प्रोजेक्ट क्रिमिनल वालों को अलग करा, अटेंडेंस वालों को अलग जज करा। तो आपका प्रोजेक्ट जिस पे होगा, जो फीचर वो दे रहा होगा, उस बेसिस पे आपको डिवाइड किया जाएगा। और फिर उसमें मान लो क्रिमिनल वाले ने, मतलब 20 क्रिमिनल वाले प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो उन 20 में से ही देखा जाएगा। आपके प्रोजेक्ट को किसी अटेंडेंस डिटेक्टर के लिए या फिर पार्किंग डिटेक्टर नहीं मर्ज किया जाएगा, आपके लिए इंडिविजुअल वो आएगा। तो इस टाइप से आपके जॉनर के हिसाब से वो डिवाइड करेंगे और उसी पे आपको जज करेंगे। और आफ्टर से इवेल्युएशन की एट द एंड हमें 1 महीने बाद हमारे पास सबमिट हो चुका था, सबमिट कर दिया मैंने। मैं थोड़े और चेंजेस कर करके रिव्यू फाइल मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट पे सबमिट करा था, जस्ट 10 मिनट पहले की सबमिट कर दिया। और फिर ऐसा था कि अब हमें बोला तो था कि 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, बट इट टुक 21 days, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसी साल पूरे इंडिया के लिए भर गया था, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस थे। तो इसमें अब आपके पास 3 मेल आएंगे जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट होगा। उन 3 मेल किस टाइप, एक तो होगा कि आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप मिल गई, या फिर होगा कि आपको इंटर्नशिप मिली है बट अब आपको इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। वो इंटरव्यूज 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको इंटर्नशिप ऑफर की जा रही है या फिर नहीं हो रहा। और थर्ड होता है कि आपको एक रिजेक्शन मेल भी आता है। ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भेजते ही नहीं है, बच्चे बस वेट करते रहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट हमेशा रिजेक्शन मेल में भी लिखता है कि थैंक्स फॉर अप्लाइंग वगैरह, वो तीनों में से कुछ भी नहीं जा सकता। तो ये था कि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए लेता है, क्योंकि उसे पता है उसके इंटरव्यू राउंड्स होंगे तो वो फिल्टर देगा बेस्ट स्टूडेंट्स को। और फिर जो रैंकिंग होती है, जैसे 3,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उनमें से रैंकिंग आती है। तो टॉप 200 to 300 स्टूडेंट को डायरेक्ट इंटर्नशिप देता है उन रैंकिंग के अकॉर्डिंग। सो मुझे डायरेक्ट इंटर्नशिप ऑफर हुई, मतलब मेरा कोई अब एचआर या फिर टेक्निकल राउंड इंटरव्यू नहीं होगा। अब मैं डायरेक्टली ऑफर लेटर आएगा जिससे लेके मैं नेक्स्ट ईयर अपने इंटर्नशिप में जा सकती हूँ। बट मेरे काफी सारे फ्रेंड्स और जिनसे मैंने बात की, उन्हें इंटर्नशिप ऑफर हुई थ्रू इंटरव्यूज। तो उस इंटरव्यू राउंड्स अभी, क्योंकि इंटरव्यू का टाइम आया था 11 to 21 जुलाई, ये रिजल्ट 21 या 22 जून को रिलीज हुआ था। तो 1 महीना, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन मिलेंगे आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए। वो इंटरव्यू का बेस रहेगा डीएसए। तो इस चीज में डीएसए ही प्ले करेगी। अगर आपका इंटरव्यू आ रहा है तो मेक श्योर आप डीएसए की काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। बट ऑल्सो वो मेंटेन कर रहे हैं सेकंड ईयर के हिसाब से। आपको फोर्थ ईयर वाले क्वेश्चंस नहीं देंगे, बट डिपेंड्स ऑन योर लक। हो सकता है आपके पास एचआर आ जाए जिससे बहुत नॉलेज है, वो आपको टेस्ट करना चाह रहा है और वो दुनिया भर के क्वेश्चंस आपके सामने, बट लेट्स बी पॉजिटिव। तो मेनली क्वेश्चंस जो मैंने एक शीट देखी थी, मैं आपको, अगर मैं सौम्या को बोल दूंगी डिस्क्रिप्शन में डाल दी। सब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उसका कैसे कैसे इंटरव्यूज हुए थे। उनमें जो क्वेश्चंस थे, फर्स्ट राउंड में क्वेश्चंस एरे के, स्टैक के थे, जो बहुत यू नो ऐसे क्वेश्चंस थे कि आपने पढ़े हैं ना तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। और आपको पहले वो 1 घंटे का इंटरव्यू होगा, तो 15-20 मिनट आपका इंट्रोडक्शन होगा। आपकी प्रोजेक्ट के बारे में भी वो पूछ सकते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में एक्सप्लेन करो। बट मेनली उनका फोकस था कि आपकी डीएसए चेक करना चाहते हैं। तो डीएसए का क्वेश्चन देंगे आपको, लाइव आपका स्क्रीन शेयर होगा और फिर आपको वहाँ पे कोड करके दिखाना है जो भी एक प्रॉब्लम है। और फिर डीएसए के मेनली इनके अलावा बच्चों की स्ट्रिंग्स पे, टीपी के भी क्वेश्चंस थे, हैश के क्वेश्चंस भी आए थे। और फिर आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा 1 घंटे के बाद, फिर 72 आवर्स के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपका एक और इंटरव्यू होने वाला है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके 3 दिन इंटरव्यू थे और अभी फोर्थ भी होने वाला है, और कुछ की फर्स्ट में ही सेलेक्ट हो गया। तो ये प्रोसीजर बहुत डिपेंड करता है कि आपका एचआर आगे, जिसने भी आपका इंटरव्यू दिया, वो कैसा आपके लिए रिव्यू देता है। तो मेक श्योर कि आप पहली बार में ही ट्राई करें, वरना जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उनके रेडी रहें। तो जैसे से इंटरव्यू, ऐसा नहीं था कि इंटरव्यू ज्यादा हो रहे हैं तो उनका लेवल बढ़ रहा है। मेनली वो एक ही जो इजी लेवल होता है ना डीएसए का, इजी टू मीडियम। बट अगर आप बोलेंगे 100 ने इंटरव्यू दिया है, तो में से 40 वो भी थे जिनके हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए। तो इट्स ऑल
रियली वेरिएबल है, बिल्कुल जो भी HR आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेक श्योर कि जो जितने भी टॉपिक्स फेमस हैं वो सारे आपने कवर करे हुए हैं, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आप हैंड टू हैंड याद भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करने का क्वेश्चन जितने मैंने पूछा नहीं आ रहे थे बच्चों के, बट मेक श्योर आप तक इन्वेस्टमेंट दे प्रॉपर्ली, DSA शीट्स करें और उससे इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। सेम ही प्रोसीजर रहेगा इन्वॉल्व इन। Okay. So I must say again you have explained the things really well, and again congratulations for that, for your selection, and thank you so much for accepting my invitation and sharing your journey with us. I believe that it is going to be helpful for many of the students, and you can share me the resources as well, like whatever you have mentioned I'll put that Yes, in the yes, description. I'll do it. So yeah, Vishaka, I believe that these were the questions that we have planned to discuss. And so before wrapping up the video, I want to know if you want to deliver any message or you have anything to say to our audience. So yeah, go ahead. Okay, so मेरे जूनियर्स ने भी जिससे मुझसे क्वेश्चंस पूछे इस टाइप से कि आपकी इंटर्नशिप मिलेगी कैसे, बड़ी कंपनीज में कैसे मिलेगी, गूगल में चाहिए, अमेजोन में चाहिए, हमें कैसे मिलेगी। मैं कहा अप्लाई करने से मिलेगी, अप्लाई तो करो, आपके पास जितनी नॉलेज है उसके साथ अप्लाई करो, वहां मिलेगा आपको चांस कि आप अच्छा कर सकते हो। बट आप अप्लाई ही नहीं कर रहे, सिर्फ प्रिपरेशन में लगे हुए हो, तो फिर आप चांस ही नहीं हो रहे। अब मेरे को था, मुझे सेल्फ डाउट काफी बार था, क्योंकि उस टाइम तक मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी थी, पर मुझे पता था कि डेटा एनालिसिस पे अगर प्रोजेक्ट आ गया, कुछ आ गया और ऑप्शन नहीं मिले तो मैं कैसे करूंगी। बट तब था कि नहीं, अप्लाई करती, और अप्लाई किया तो वहां मुझे अपनी फील्ड भी दिखी, मुझे अपनी मेरी ML फील्ड है, वो ML फील्ड मुझे वहां दिखी, मशीन लर्निंग से मैं प्रोजेक्ट बना दिया। तो वही था, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। मेक श्योर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आप एक्टिव रहें, सौम्या को फॉलो करें, वो आपको बताते हैं, वो बहुत मैंने देखा टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है कि इंटर्नशिप आ रही है, कर रही है, तो आप प्लीज उन्हें फॉलो करें, ऐसे और भी लोगों को फॉलो करें, और देखें कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहे हो, तो उसे अप्लाई करें और टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, ताकि इंटर्नशिप के लिए मीनू आपके प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। तो रेज्यूमे डालने के लिए आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहो, बट जरूरी नहीं कि आपने बहुत हाई फाई प्रोजेक्ट बनाया, बट आपके पास मिनिमल नॉलेज है, पर उस मिनिमल नॉलेज से आपने आपका आइडिया अच्छा था प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट अच्छा ना हो बोले, बट आइडिया बहुत अच्छा हो तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। तो सारी एप्लीकेशंस पे आप अप्लाई करें, सर्च करते रहें टाइम टू टाइम। जरूरी नहीं है कि आप सारी फाइन कंपनीज में जा रहे हैं, बहुत छोटी कंपनीज भी हैं जो अच्छे अच्छे स्टाइपेंड के साथ आपको देती हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती हैं। किसी भी फ्रेशर के लिए अगर आपको इतना अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए, फैन का नशा थोड़ा सा उतार देना चाहिए, बट ट्राई सब में करना चाहिए। अप्लाई मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में नहीं किया था, मैं बाकी में भी किया था, अभी गूगल की आएगी, माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन की आएगी, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन काम है कि जितनी भी प्रिपरेशन है उसके साथ अप्लाई तो करो एटलीस्ट, और अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करो कि हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैं आगे देख लूंगी। दैट्स ऑल द मैसेज कि अप्लाई करना, वो अपॉर्चुनिटी मिस कभी नहीं करनी। Yeah, definitely an amazing and helpful advice for everyone. So yeah, that's it from my side. Thank you so much and all the best for your future. So,